Now coming to the differentiation between the functional organizational structure and divisional organizational structure on the basis given in this diagram. According to these 8 bases, we differentiate between these two, that how they are different to each other, how they work, what benefits they get, what demerits they have. So let's start with the number 1 differentiation is the basis of foundation. Why we prepare this organizational structure? What is the main reason to make this organizational structure? So first is the basis of the foundation. In any organization, if we are adopting a particular organizational structure such as functional organizational structure or the divisional organizational structure, तो उसको बनाने के पीछे what is the reason? The reason is that under the functional organizational structure, as this small diagram is depicting some information that one MD is headed the team of few departments. These rectangle shapes are considered as the different departments. Department 1, 2, 3, 4, 5. Under this organization, this is the hierarchy of the positions where MD is monitoring and controlling and managing also to the number of departments under him. So these department performs the different sort of working, different types of activities, and all the same nature activities are under one department. So they are performing the same nature of work under one department. So according to their nature of work, according to the function they perform, the department is created, and the main reason to adopt this organizational structure that this is on the basis of functions. हम ये hierarchy इस basis पर बनाते हैं, ये डिजाइन इस बेसिस पर बनाया गया है कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शंस के अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना है इन फ्यू डिपार्टमेंट्स, और वो फ्यू डिपार्टमेंट्स सेपरेट फंक्शंस होते हैं जो वो मेजर फंक्शन उस ऑर्गेनाइजेशन के हैं जिसको हेडेड किया जा रहा है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड या एक्सपर्ट्स की हेल्प से, और वो सारे एक्सपर्ट्स वर्क करते हैं अंडर द गाइडलाइंस एंड लीडरशिप ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और इसी बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की. डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस. जैसे कि यहाँ पर भी एक हायरार्की दिखाई गई है. यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर, अगेन मैनेजिंग डायरेक्टर और द ओनर ऑफ द कंपनी, CEO आई एम टेकिंग हियर, और द चेयरमैन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बॉस है वो बॉस एक पर्टिकुलर टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसने अपने पोजीशन हायरार्की को बांट दिया है, लेकिन उनको बांटा किस बेसिस पर है? फंक्शन के बेसिस पर नहीं, उसमें प्रोड्यूस होने वाले एक से ज्यादा टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के बेसिस पर. जैसे कि इस डायग्राम में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये वाली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 3 तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस को मैन्युफैक्चर कर रही है या यूज कर रही है, इन विच द फर्स्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड दे आर प्रोड्यूसिंग कॉस्मेटिक्स, एंड द थर्ड थिंग इज द केमिकल what they are manufacturing or producing. So these 3 lines of productions are operated by the chairman of this business firm. ये business firm एक definitely एक large business firm है जो कि आपके functional organizational structure के डायग्राम के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें, यहाँ पे फंक्शन का एक ग्रुप है, नंबर ऑफ फंक्शंस इन वन ग्रुप, बट यहाँ पे वो नंबर ऑफ फंक्शन 3 ग्रुप्स में है. तो जहाँ पर 3 ग्रुप ऑफ द डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, तो ये लेवल और द स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन में बाद में बांटा गया है, लेकिन पहले उनको डिवाइड करने का जो भी रीजन है दैट इज द डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस. तो यहाँ पर बेसिस है
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का उसका डिजाइन बना बेसिस ऑफ द फंक्शंस, यहाँ पे उसका डिजाइन बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइंस। अब यही वाले फंक्शन सभी डिपार्टमेंट के अंडर रखे गए हैं जो कि उस प्रोडक्ट को बनने में, तैयार होने में हेल्प कर रहे हैं। कम टू द सेकेंड difference of this table, the accountability. Accountability is the responsibility that only comes when the task is completed. So how the person is accountable or answerable in front of his superior. तो वहां पर accountability, क्योंकि यहाँ पर accountability difficult हो जाती है और क्योंकि ये एक ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो कि स्मॉल है, तो यहाँ पे सारे मिलकर ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सभी सेगमेंट्स के अलग अलग हैं। तो यहाँ पर अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाते हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगा कि हमारी कोई गलती नहीं है, परचेज डिपार्टमेंट का काम टाइम पे पूरा नहीं हुआ था, या परचेज डिपार्टमेंट ने टाइमली ऑर्डर नहीं किया था रॉ मटेरियल का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट पे एलिगेशन लगाएगा, परचेज डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट पे एलिगेशन लगाएगा। कुछ डिपार्टमेंट आपस में अच्छे अंडरस्टैंडिंग शेयर नहीं करते, तो वो वहां पर उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कोई भी उस काम के कंप्लीट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस गलती को एक्सेप्ट करने में वो आनाकानी करेंगे, बल्कि किसी दूसरे पर वो गलती, वो ब्लेम डालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये स्ट्रक्चर छोटा है और वो सारे फंक्शंस आपस में कोरिलेटेड तो हैं, लेकिन क्योंकि वो सारे मिलकर जब काम करेंगे तब ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव ना होने की वजह से फॉर दिस नॉन अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स नोबडी विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ड्यू टू हुज नॉन अचीवमेंट द ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट अकम्प्लिश्ड। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे जवाबदेही मुश्किल हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आसान होती है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इतने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर होने हैं, क्योंकि वो पूरा डिपार्टमेंट ही इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो सारे मिलकर इसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करेंगे। वो किसी दूसरे टारगेट्स को फॉलो नहीं करेंगे, उनका सिर्फ एक ही टारगेट होगा, एक ही गोल होगा, टू अचीव द एक्सपेक्टेड टारगेट्स गिवन बाय द हेड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट। तो वो अपने डिपार्टमेंट के लिए ही 100% कंट्रीब्यूट करेंगे, एफर्ट्स पुट करेंगे। तो यहाँ पर वो अपने जब डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे उनकी जवाबदेही वो अकाउंटेबल इजीली आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं कि किसकी गलती की वजह से क्या नॉन अचीवमेंट हुई है। थर्ड पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्ट। दिस इज another factor of differentiating these two structures. When we talk about the conflicts, functional organizational structure में ज्यादा चांसेस हैं कॉन्फ्लिक्ट्स आने के एज कम्पेयर टू डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसे कि आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो क्लोजली रिलेटेड और इंटरलिंक्ड डिपार्टमेंट से बना होता है, जिसमें आपका डिविजनल स्ट्रक्चर है वहां पर डिफरेंट डिविजन्स एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेटली वर्क करते हैं। तो जब वो सेपरेटली वर्क कर रहे हैं तो आपस में उनका इतना कम्युनिकेशन नहीं होता है, ना ही उनका इतना इंटरेक्शन होता है रिलेटेड टू वर्क, बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन इज वर्किंग एंड फोकसिंग on its own work without disturbing and sharing things to the other division. तो वहां पर उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उनका कोई भी एरिया ऑफ कॉमन डिस्कशन नहीं है। तो दैट्स वाई यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स कम होने के चांसेस हैं, लेकिन ये क्योंकि क्लोजली रिलेटेड है, यहाँ पर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है जिसके लिए ये सारे फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, और ऐसा माना जाता है, ऐसा वी आर बिलीविंग दैट दे आर वर्किंग विद द हेल्प ऑफ ईच अदर बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो जब वो आपस में ज्यादा उनका इंटरेक्शन और ज्यादा कम्युनिकेशन होगा तो वहां पे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस रहते हैं।
The fourth point is the development of the manager, in which organizational structure the managers are developing more in terms of their occupation, in terms of their personality, in terms of their profession. वो वहां पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में लेस डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि उनको बहुत ही लिमिटेड वर्क दिया गया है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, और वो बार बार रिपीटेड वर्क करने की वजह से उनकी जॉब बहुत ही मोनोटोनियस हो जाती है. ऑल्दो इट इज प्रोवाइड द स्पेशलाइजेशन ऑफ द सेम जॉब, बट उसके बाद भी द एरिया ऑफ एक्सपोजर, द एरिया, द स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग द थिंग्स इज लिमिटेड. ये क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज लिमिटेड एंड स्मॉल एज कंपेयर टू divisional structure. Divisional structure is very vast, so this is the place where the more chances to develop as a manager and to develop as a professional. Next point is the specialization. Under the functional structure, the people or the organization is specialized in function related activities or the departments. Under the divisional organizational structure, there is a specialization in product. Each and every task performed and designed and completed on the basis of the product line. But in functional organizational structure, because they all are working for the one line of production, तो उस एक ही लाइन को फॉलो करने के लिए स्पेशलाइजेशन फंक्शन में आती है, जॉब में आती है. यहाँ आपकी स्पेशलाइजेशन आएगी उस प्रोडक्ट में, क्योंकि एक डिवीजन में जितनी भी एक्टिविटीज है, एवरी एक्टिविटी इज फोकसिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द पर्टिकुलर और द कॉमन प्रोडक्ट. नेक्स्ट पॉइंट इज द कोऑर्डिनेशन. द कोऑर्डिनेशन इज द अंडरस्टैंडिंग लेवल और द गुड रिलेशनशिप among the workers or the people who are working in the formal atmosphere. Coordination in the functional organizational structure is more and easy to coordinate, where under the divisional organizational structure the coordination is less and difficult to maintain. Why? Because under the functional organizational structure the people are closely related, whether they are suffering from some conflicts and the mental or the personal bias nature, but under the divisional organizational structure they are scattered. Sometimes they are not connected and communicated to each other, because they are working in the different divisions, and the different divisions are very much separate, very much different from one division. So there are less chances to be communicated from each other and to get information messages from the other divisions, until unless it is so important or the common information for the whole organization as an empire. जब तक वो बात नहीं करते हैं, अगर वो बात ही नहीं करेंगे तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन कम होगा. और अगर कोऑर्डिनेशन हम बोलेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना है, तो वो क्रिएट करना भी डिफिकल्ट होगा. तो मे बी क्योंकि जो डिविजन्स हैं, डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट बनाई गई हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो डिवीजन आर इन दी सेम लोकेलिटी और एट दी सेम ज्योग्राफिकल एरिया. मे बी द हेड ऑफिस और द टोटल एरिया covered by the electronic is the other country, and the total area covered by the cosmetic division is the another country. तो वहाँ पे उनका कोई ज्यादा इंट्रैक्शन और ज्यादा कम्युनिकेशन ना होने की वजह से कोऑर्डिनेशन भी कम हो जाता है, और वो वैसे भी कोऑर्डिनेशन वो आपस में क्रिएट करने में enable. Another 7 point is the operational autonomy. Operational autonomy in the functional structure is less and in divisional structure is more, because all activity and all function as a separate department is controlled by one authority or the one position who is the monitor or who is the controller of all the departments, because this is a small scale of organizational structure. So that's why only one person is there who is heading to all the departments. सभी departments को head करने के लिए सिर्फ एक ही
पर्सन सफिशिएंट होता है इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, जो कि सभी डिपार्टमेंट्स को अकेला हैंडल कर रहा है। तो इसीलिए लोगों को ज्यादा अथॉरिटीज नहीं दी जाती, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटीज मैनेजिंग डायरेक्टर है या जनरल मैनेजर है। तो वहां पर कोई भी अथॉरिटी दी जाती है डिपार्टमेंटल हेड्स को तो उतनी ही दी जाती है अप टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आर कंप्लीटेड, उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी दी जाती है। बट फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस दे हैव टू अप्रोच टू द हेड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है या टॉप लेवल मैनेजमेंट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। तो उनको ऑपरेशनल काम करने की अथॉरिटी ज्यादा नहीं दी जाती, उनको ज्यादा फ्रीडम नहीं है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर लेस ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है। लेकिन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर हर डिवीजन के अंदर देखने को मिलता है, ये हर डिवीजन में पाया जाता है, क्योंकि हर डिवीजन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को प्रोडक्ट की प्रेफरेंस के बाद डिजाइन करती है, वहां पर स्ट्रक्चर करती है। तो उसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर पूरी डिवीजन को हेड जो किया जा रहा है वो एक हेड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, तो वो वहां पर उसको काम करने की पूरी फ्रीडम दी जाती है। He is not supposed to ask each and every small or big question from the managing director unless it is affected the overall goal of the whole empire। जब तक वो अपने लेवल पे डिसीजन लेने के लिए फ्री होता है तो वहां पर उसको काम करने की ऑटोनॉमी ज्यादा मिलती है। वो अपने लेवल पे बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं, बल्कि सारे डिसीजंस वो अपने लेवल पे ले लेते हैं। सिर्फ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट कॉन्फिडेंशियल डिसीजंस ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ उनकी डिवीजन को अफेक्ट नहीं करेंगे, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेंगे। अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्शन कम हो रही है तो वो अपने लेवल पे उसको इम्प्रूव करने के लिए या करेक्ट करने के लिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए फ्री है। लेकिन अगर उसके किसी डिसीजन की वजह से या उसके डिपार्टमेंट की किसी भी एक्टिविटी या किसी भी डिसीजन की वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल अफेक्ट हो रही है या रेपुटेशन पर बात आ रही है, तो वहां पे वो उस लेवल पे डिसीजन ना लेकर वो डिसीजन लिया जाता है उस एम्पायर के ओनर की हेल्प से, या फिर वो इस काम के लिए फ्री नहीं है। वो सिर्फ अपने वर्किंग एरिया में अपनी डिवीजन में डिसीजन लेने के लिए फ्री होगा, तो उसको उस लेवल तक ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिलती है। लेकिन यहाँ पर ऑपरेशनल ऑटोनॉमी नहीं दी जाती, क्योंकि जो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वही इस पूरी एम्पायर का, जो ये छोटी सी एम्पायर है इसका ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिव इसको ना देकर, एमडी ना लेकर इस कंपनी का ओनर लेता है। तो वहां पर, और अगर डिपार्टमेंटल हेड्स ना लेकर एमडी को वो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी जाती है डिसीजंस लेने के लिए। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, इज द सूटेबल टू दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। When we talk about the functional organizational structure, तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन सी फॉर्म्स अडॉप्ट करती हैं? इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से हमारे सामने चॉइस है कि हम किस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करें। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमें हमारे कंडीशंस को या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे बिजनेस को कौन सा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज बेस्ट सूटेड जो हमारे टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो इन दैट वे द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेफिनेटली small in size as compared to the divisional organizational structure. Also it covers, it spreaded in the less geographical territory and it is spreaded in the more geographical territory. तो वो थोड़ा साइज में ये स्ट्रक्चर बड़ा है, ये स्ट्रक्चर छोटा है। तो जो स्ट्रक्चर छोटा होगा दैट इज अडॉप्टेबल फॉर दी स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये फंक्शंस में डिवाइड है, तो ये फंक्शन में डिवाइड होने की वजह से कोई एक ऐसा फंक्शन, अगर हम फंक्शंस पे फोकस कर रहे हैं तो सारे फंक्शंस किसी एक पर्टिकुलर लाइन पर फोकस कर रहे हैं। वो पर्टिकुलर लाइन है सिंगल प्रोडक्ट लाइन। तो यहाँ पर ये वैसे तो सभी
तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है, लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये ज्यादा सूटेबल है जो सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्शन में डील करती हैं, ट्रेडिंग करती हैं। और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज बेस्ट सूटेड ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस में डील करती हैं, वेदर दे आर लार्ज इज इन साइज और स्केल, जिसकी प्रोडक्शन स्केल और प्रोडक्शन लाइन एक से ज्यादा है, प्रोडक्शन स्केल लार्ज है और वहां पर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, तो वहां पर हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यूज करेंगे, क्योंकि डिविजनल के बाद तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर है। व्हेन अंडर द टॉप लेवल मैनेजमेंट द थिंग्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमने पहले प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया, फिर हम फंक्शंस पर आए। तो पहले हमने प्रेफरेंस किसको दी? प्रोडक्ट्स को। लेकिन यहाँ पर हम, क्योंकि प्रोडक्ट तो एक ही है, तो हम प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं? हम प्रेफरेंस दे रहे हैं फंक्शंस को। तो यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट लाइन वाली फर्म्स के लिए ये बेस्ट सूटेबल है, एंड दिस इज सूटेबल फॉर द मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन एंड विद द लार्ज स्केल। So with this differentiation, the topic of the organizational structure, meaning of the functional organizational structure with its advantages and disadvantages, divisional organizational structures meaning and its advantages and disadvantages, and the differentiation between the functional structure and divisional structure, this topic is completed.